ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿੱਖਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। सोशल एंड जेंडर सर्वे 2016 और 17 के मुताबिक लाहौर में 67 अपैरल और टेक्सटाइल कंपनियों में खवातीन एम्प्लॉइज की तादाद सिर्फ 15% है, जबकि फैसलाबाद में खवातीन की ये तादाद 22% है। सर्वे नतायज बताते हैं कि खवातीन मुलाजमीन की तादाद मर्द मुलाजमीन की तादाद से बहुत कम पाई गई है। दूसरी जानिब लाहौर और फैसलाबाद में 75% खवातीन से किए जाने वाले सर्वे के मुताबिक 96% खवातीन अपैरल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तालीम हासिल करने में दिलचस्पी रखती हैं, जबकि 76% खवातीन ने अपैरल और टेक्सटाइल कंपनीज में काम करने को तरजीह दी। इसके अलावा 98% खवातीन ने फैमिली की सपोर्ट के लिए अपने मुआशरती व माशी हालात में तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार किया। इस रुझान को देखा जाए तो खवातीन की खुद मुख्तारी से उनकी मुआशरती व माशी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। पाकिस्तान में बेसिकली टेक्सटाइल मसनूआत का बड़ा ही स्कोप है। तो पाकिस्तान की आबादी कमोबेश 49% फ़ीमेल के ऊपर या 50% फ़ीमेल के ऊपर कंसिस्ट करती है, लेकिन उनमें एम्प्लॉयमेंट में उनका शेयर जो है बहुत नॉमिनल सा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हम वैल्यू एडिशन में जाएँ तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जो 10 टाइम एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगी, उसमें 50% जो वुमेन है उनको भी एम्पावरमेंट मिलेगी, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जब उनका लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर होगा तो वुमेन एम्पावर होंगी। यहाँ तक मसूद का मैं जिक्र करता हूँ तो हमने 2001 में फ़ीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर काम स्टार्ट किया। उस वक्त 1 से 2% हमारे पास ख़वातीन थी। आज अल्लाह के फजल करम से 18 से 19 साल में मोर दैन 25% आउट ऑफ 25,000 ओवरऑल जो पॉपुलेशन है एम्प्लॉई हैं मसूद टेक्सटाइल के, उसमें मोर दैन 20% जो है फ़ीमेल काम कर रही हैं। हमारा ये प्लान है अप टिल 2025 हम फ़ीमेल का शेयर जो है वो 50% तक लेके जाएँ। ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਰ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸਿਟੀ ਨਵਾਂ ਅਦਾਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਜੋਬ ਕਰੋ, 5,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਬਾਹਰ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਵਾਧੀ ਘਾਟੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ, लेकिन ऐसे लोग सी ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੁਤਮਈਨ ਦਿਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈਆਂ, 12 ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਦਾਰਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਗਏ ਅਦਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਆ। ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਨਰ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਪੂਰ ਕਰਵਾਤੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰ ਕਰਵਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਨਸਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾफ़ी बेहतर हो गए। आज पाकिस्तान में साजिदा जैसी बेशुमार लड़कियों की सोच न सिर्फ मुकम्मल तौर पर तब्दील हुई है, बल्कि वो पहले से ज्यादा पुरएतमाद और बेहतर जिंदगी बसर कर रही हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से कायम किया गया है ये एक अदारा जो कि ख़वातीन के लिए स्पेशली जो टेक्सटाइल की हुनर की तालीम है उसके लिए ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। और इसके अंदर हम जो बच्चियों को सहूलियात दे रहे हैं, वो सबसे बड़ा जो मसला बच्ची की तालीम के अंदर आता है वो है कि उसको छोड़ने लाने का जो मसला है ट्रांसपोर्ट का। उसके लिए गवर्नमेंट ने इसके लिए गाड़ी दी है जो कि बच्चों को उनके गांव से, उनके घर से जो है यहाँ तक पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराहम करती है। सेपरेट क्लासरूम है हमारे पास, ख़वातीन असातिज़ा हैं, बहुत अच्छी और बिल्कुल न्यू मशीनरी है जिसके ऊपर बच्चों को जो है ना वो सिखाया जाता है सिलाई का काम। ख़वातीन के लिए जो दूसरा बड़ा मसला मैं समझती हूँ, बच्चियों के अलावा जो बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं उनके लिए कि अगर वो कोई काम सीखना चाहती हैं तो उस दौरान में अपना बच्चा वो कहाँ पे, मतलब अगर उनके पास छोटे बच्चे हैं तो वो कहाँ पे उसको छोड़ें। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक डे केयर सेंटर बनाया है जिसके अंदर बड़ी अच्छी सहूलत है, बड़ा अच्छा माहौल है। हम बच्चे की वहाँ रखने की ज़िम्मेदारी लेते हैं ताकि जो माँ है उस दौरान में वो अपना जो है ना वो पूरी तवज्जो और ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम सीख सके। इसके अलावा चूँकि 5 से 6 घंटे यहाँ पे ख़वातीन गुजारती हैं, तो कोई अगर मतलब थोड़ा तबीयत का इशू या कोई इस तरह का मेडिकल की कोई एमरजेंसी सिचुएशन उन्हें पेश आती है तो उसके लिए हमारे जो करीबी सरकारी डिस्पेंसरी है उसके अंदर खातून नर्स भी अवेलेबल है। ये वो सहूलियात हैं जो कि सरकारी तौर पे इस अदारे के अंदर फ़राहम की गई हैं ताकि ख़वातीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये हुनर की तालीम की तरफ आएँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। हमने यहाँ पर बच्चियों को पूरा पुरसकून माहौल फ़राहम करने के लिए जो एक इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक हमने यहाँ पर उनकी सेफ्टी के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। और उसके साथ साथ जो एक गवर्नमेंट का भी लॉ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स 12 के तहत हमने एंटी हरेसमेंट कमेटी भी बनाई हुई है जिसका एक मैं खुद मेंबर हूँ, हमारे एचआर मैनेजर मेंबर हैं और उसके साथ साथ एक खातून मेंबर जो कि रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमने उस कमेटी को फॉर्म किया हुआ है। इसके साथ साथ हमने पूरा इसका वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इर्द गिर्द के इलाके ख़ास तौर पर जो हमारे गरीब इलाके हैं उनके अंदर हम ज़्यादा फोकस्ड हैं ताकि वहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनको हम फ़नी तालीम दे सकें ताकि वो एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। हम उनको स्टाइपेंड भी देते हैं ताकि उनको जो ज़रूरत के पैसे हैं वो उनको पूरे हो सके। इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और फैक्ट्रियों में ख़वातीन को साजगार माहौल की फ्राहमी के जरिए उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाता है ताकि वो मुलाजमत एक लंबे अरसे तक जारी रख सकें। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने पाकिस्तान निटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से अदारा कायम कर रखा है, जहाँ पे ना सिर्फ हम मुफ्त फ़नी तालीम देते हैं बल्कि आने वाले ट्रेनीज़ को वजीफ़ा भी दिया जाता है और ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद इंडस्ट्री में जॉब के लिए पूरी गारंटी हासिल है। ख़वातीन के लिए यहाँ पे इंतहाई साजगार माहौल मुहैया है। इंडस्ट्री में भी ये ख्याल रखा जाता है कि ख़वातीन के लिए उनके लिए अच्छा साजगार माहौल हो ताकि वो ज़हनी तौर पर
मुतमिन होकर वो अपना काम सर अंजाम दे सकें। प्रैक्टिस का माहौल बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे साथ मेरे भाई गए हैं, मेरे से ज़्यादा वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और मुझसे पहले उन्होंने कहा था कि आप एडमिशन ले सकते हो क्योंकि मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा है। को एजुकेशन होने के बावजूद रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे और हमारी ब्रेक टाइमिंग, हमारी स्कूल ऑफ टाइमिंग वो 5-10 मिनट का फ़र्क इसीलिए रखा जाता था ताकि गेट से जब बाहर जाए फीमेल तो वो सिर्फ फीमेल्स ही हो, मेल साथ ना हो। हमारे जितने टीचर सब प्रोफेशनल थे और पूरी क्लास को एक जैसे लेके चलते थे। जितनी मत्ता भी हम लोगों ने उनसे हेल्प मांगी है वो उन्होंने हेल्प की है और हमारे हर काम में सपोर्ट किया हमने। एज ए फैशन डिज़ाइनर ये लाइन बहुत बोल्ड है। अगर आप बाहर निकले हो तो आपने काम करना है, उसमें ये नहीं देखना कि मेल साथ है या फीमेल साथ है। कुछ नेचर भी इंसान की होती है, कुछ मेरे घर वालों का मेरे पर एतमाद था, उस एतमाद को उन्होंने यूज़ किया और मेरे साथ मेरी जितनी भी कोशिश अब तक की है उसको मैंने मुझे सपोर्ट किया। मैं समझता हूँ कि बहन की कामयाबी में वालिद का और भाई का बहुत अहम किरदार होता है। जैसा कि मैंने और मेरे वालिद साहब ने फरियाल पे एतमाद करके इस इदारे में भेजा ताकि वो अपने हुनर को बेहतर कर सके। मैं चाहता हूँ कि तमाम भाई अपनी बहन के बेहतर और अच्छे हुनर को पहचानने के लिए उसको इस इदारे के साथ मुंसलिक करें ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में ख़ुद मुख्तार हो सके। तुर्की जो एग्ज़िबिशन थी उसकी अपॉर्चुनिटी जब आई, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इजाज़त दी, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ तुर्की गई। तुर्की विज़िट ने मेरी जितनी भी लर्निंग प्रोसीजर था, जितना भी मैंने सीखा हुआ था उसमें मज़ीद पॉलिश किया। एज ए टीचर मैं अपनी फैक्ट्री में गई थी, उसी फैक्ट्री में मुझे काम को देखते हुए सुपरवाइज़र के तौर पे रोल दिया। फिर सुपरवाइज़र से मैं मर्चेंडाइज़र अपने आप को मनवाया। आज ये वो वक्त है कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस रन कर रही हूँ और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ। मेरी फैमिली मेम्बर्स मुझ पर फ़ख्र महसूस करते हैं जिससे मुझे खुशी मिलती है। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर की जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, जो हुनरमंद लोग हैं जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं, उसके लिए ट्रेनिंग अरेंज करना है। मौजूदा तौर पे पंजाब स्किल डेवलपमेंट फ़ंड के तहत 100% फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें महाना वजीफ़ा भी है और किताबें एंड ऑल द मटीरियल, जो तमाम मटीरियल चाहिए होता है ट्रेनिंग के लिए, वो दिया जाता है। ये इदारा न सिर्फ बच्चों को फ़नी तरबियत देता है बल्कि उनके लिए कोशां रहता है कंप्लीशन के बाद फैक्ट्रीज़ में उनके लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग का इंतज़ाम करे, इंटर्नशिप का इंतज़ाम करे। इससे फ़ायदा ये होता है कि 2 माह या 3 माह में जो तलबा और तालिबात ट्रेनिंग करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, तो फाइनली उसी फैक्ट्री में उनको जॉब भी ऑफ़र हो जाती है। तो ये एक खुशी वाली बात है कि एक बच्चा जिसने तरबियत शुरू की तो आखिरकार वो ऐसी पोजीशन पे पहुंच गया कि जिसमें वो अपने ख़ानदान को और अपने फैमिली मेम्बर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है। तो बांग्लादेश जैसे मुल्क में 90-95% जो वर्कर हैं वो ख़वातीन गारमेंट इंडस्ट्री में काम करती हैं, जबकि हमारे यहाँ ये परसेंटेज जो है वो 5% भी नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। इसमें ख़वातीन जो हैं वो भरपूर हिस्सा ले सकती हैं और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। इंडस्ट्री में जो है हम ख़वातीन की जो फ़नी तरबियत है उसके साथ साथ उनकी ज़हनी तरबियत को पे भी ज़ोर देते हैं और उनकी कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं कि जी उनको उनके लिए यहाँ पे किस तरह के मौक़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स के एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। इतना अच्छा काम हो रहा है और उनका इजाफा हो रहा है तकरीबन 20%। हमारे जो ख़वातीन हैं ना, हमारे जो फीमेल वर्कर्स हैं, उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। आप लोग सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि गारमेंट इंडस्ट्रीज़ में आप लोग जाएं। जिस तरह से बांग्लादेश में, वियतनाम में, इंडिया में हज़ारों तादाद में हमारे जो लेडीज़ हैं वो जा रहे हैं इंडस्ट्री में, और इसके साथ साथ जो फैमिली है ना, आपका भाई, बाप, माँ, उन सबको मैं अपील करता हूँ कि आपके फैमिली मेम्बर्स को जाने दो फैक्ट्रीज में और वो काम करें, इसलिए
کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیملی میں 2-3 اسٹریم وہاں سے فیملی والوں نے کمائے تو یہ سب کے لیے بہتر ہے. تو ہمارے ہاں ایک ادارہ ہے جو 3 سال سے چلا رہے ہیں جس میں عورتوں کو فنی تعلیم سکھائی جاتی ہے, اور میری بیٹی نے بھی ادھر 3 ماہ کا کورس کیا ہے, اور میرے گاؤں سے بھی تقریباً 35 بچوں نے یہ ہنر سیکھا ہے. تو میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو اس ادارے میں بھیجیں اور فنی تعلیم سکھائیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کا ہاتھ بٹا سکیں. مجھے یہاں پہ کام کرتے 1.5 سال ہو گیا ہے, اور ان 1.5 سالوں میں مجھے کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی ہراسمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا. میں یہاں پہ کام کر کے اپنے والدین کی کفالت میں مدد کرتی ہوں, اور یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے. کوئی ہنر سیکھیں گے تو ہی کل کسی قابل بنے گے. خواتین کی مہارتوں کو کمال بخشنے کے لیے اپ گریڈڈ کریکولم کے مطابق تعلیم اور جدید مشینری پر تربیت یقینی بنائی جاتی ہے تاکہ وہ زندگی کے کسی بھی شعبہ میں باعزت روزگار کمانے کے قابل ہو سکے. ہمارا مقصد ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہنرمند افراد کی کمی کو پورا کرنا ہے. اس مقصد کے لیے ہم غیر ہنرمند افراد کو انسٹیٹیوٹ میں داخلہ دیتے ہیں تاکہ وہ یہاں پہ مختلف کورسز میں کام کر سکیں, کام سیکھیں اور اس کے بعد انڈسٹری میں جا کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں. ہمارے تمام کورسز بالکل فری ہوتے ہیں, بلکہ ہم اسٹوڈنٹس کو ٹرانسپورٹیشن کے مد میں وظیفہ بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے آنے جانے کے اخراجات وہ پورے کر سکیں. اس مقصد کے لیے ہم خواتین کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے ان کے علاقوں میں گھر گھر جاتے ہیں, ڈور ٹو ڈور ہم اس کی کیمپین کرتے ہیں, ان کے والدین سے ملتے ہیں, ان کے والدین سے مل کے انہیں انسٹیٹیوٹ کے بارے میں اور اس کی کارکردگی کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں, انہیں انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ انسٹیٹیوٹ میں آئیں, یہاں پہ ماحول کا جائزہ لیں اور اس کے بعد اپنے گھر کی خواتین کو اگر مناسب سمجھیں تو یہاں داخلے کے لیے بھیجیں. کریئر کا سٹارٹ جو ہے ایک آن لائن بوتیک سے کیا. اس ٹائم پہ پاکستان میں آن لائن بوتیک کا کوئی خاص کانسیپٹ نہیں تھا. کچھ عرصہ میں نے کام کیا, کام کرنے کے بعد ہمیں PKTI کا پتہ چلا, ہم وہاں پر گئے اور وہاں پہ نہ صرف ہماری پروفیشنل گرومنگ ہوئی, ہماری سیلف گرومنگ بھی کافی کی گئی. ہمیں نیو اسکلس سکھائے گئے, ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح سے ہم مارکیٹ میں ان ہو سکتے ہیں, ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم اپنے اسکلس کو کیسے پالش کر سکتے ہیں. اس پوری جرنی کے بعد میں نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا, قصبے ہنر ڈیزائن اسٹوڈیو. میرے پاس فیمیلز آتی ہیں, بالکل 0 لیول سے بھی آتی ہیں اور جسٹ اپنی ڈگریز کمپلیٹ کر کے بھی آتی ہیں. پر کیا ہے, میرے پاس ٹیچرز بھی ٹریننگ کے لیے آ رہی ہیں. صرف ہماری مارکیٹ میں یا ہماری یونیورسٹیز میں 100% نہیں دیا جاتا, اسکلز نہیں دیے جاتے, آپ کو پراپرلی نہیں بتایا جاتا. ہم یہاں پر اسٹوڈنٹس کو گروم کرتے ہیں, ان کو مارکیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں, جو اندر کی جتنے بھی ہم ٹیکسٹ کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ان سب ٹیکسٹ کو یہاں پہ بتا کے ان کو اچھے طریقے سے جو ہے پریزنٹیبل بنا کے ہم مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا برانڈ بھی رن کر رہے ہیں, اپنی بوتیکس رن کر رہے ہیں, اور وہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ اسٹل میرے ساتھ لنک میں ہے. کون کہتے ہیں مرد و عورت باعزت طریقے سے اکٹھے کام نہیں کر سکتے. مجھے اور مس صبوحی کو 2 سال ہو گئے قصبے ہنر ڈیزائن اسٹوڈیو چلاتے ہوئے, اور مجھے خوشی ہوتی ہے مس صبوحی کو دیکھ کے ایک عورت ہو کے باعزت طریقے سے زندگی گزار رہی ہیں. جس طرح سے ہنر سیکھ کے میں نے کام کا آغاز کیا, تمام خواتین اسی طرح ہنر سیکھ کے اپنے کام کا آغاز کر سکتی ہیں اور دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہونے کے بجائے انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں. آج وہ وقت نہیں رہ گیا جس ٹائم پہ ہیڈ آف دا فیملی صرف کماتا تھا اور پوری فیملی جو ہے اس کے کمائی پہ چلتی تھی. آج میل اور فیمیل کا یہ جو فرق تھا کہ عورت صرف گھر سنبھالتی ہے اور مرد جو ہے وہ کماتا ہے, اس کو ختم کر کے ہم سب کو جو ہے اس قابل بننا پڑتا ہے کہ ہم معاشرے میں نکلیں اور جا کے کام کریں, خود کو خود مختار کریں, اپنی فیملی کو سپورٹ کریں ایک اچھا فیوچر دینے کے لیے. باہر جب ہم نکلتے ہیں گھروں سے تو ہمیں بہت ساری مشکلات ضرور نہ فیس کرنی پڑتی ہے, پر میں اگر کر سکتی ہوں تو کوئی بھی کر سکتا. پریگٹی, PKTI اور فیٹی جیسے بین الاقوامی معیار کے حامل اداروں سے تربیت یافتہ خواتین
इस बात की जमानत है कि अगर पाकिस्तान में खवातीन की भरपूर हौसला अफजाई के साथ उन्हें साजगार माहौल फराहम किया जाए तो वो दुनिया भर में मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकती हैं। औरत खुद मुख्तार होगी, जिंदगी खुशहाल होगी। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी।